So good morning students. Well, myself is Simrandeep Singh and I am working as a mathematics teacher in Government Smart High School Nankala, District Patiala. So बेटा आज ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे क्लास 9th ਦੀ एक्सरसाइज 10.5 ਦੇ क्वेश्चंस ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਪ ਦੁਆਰਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਣ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕੋਣ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ AB ਇੱਕ ਚਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ AB ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਣ ਬਣਾਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ 60 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਣ 30 ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ AB ਇੱਕ ਚਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਕਰ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ AB ਇੱਕ ਚਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ACB ਅਤੇ ਐਂਗਲ ADB ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਸੀ ਐਂਡ ਥਰਡ ਥਿੰਗ AB ਇੱਕ ਵਿਆਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ AB ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਆਸ ਤਾਂ ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਧਾ ਚੱਕਰ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ AB ਇੱਕ ਵਿਆਸ ਹੈ AB ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਕ ਔਰ ਇਹ ਵਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੋਣ ਬਣਾਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਿਹੜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਗਲ D ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ B ਬਰਾਬਰ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ A ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ C ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 10.5 ਕਲਾਸ 9 ਦੀ ਚੱਕਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ PQR ਬਰਾਬਰ ਹੈ 100 ਡਿਗਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ PQR is equal to 100 डिग्री ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ सेंटर जो है वो है O और A है P इसको आप बना सकते हैं इस तरह P R और this is Q ਹੁਣ P R क्योंकि ये सेंटर चो नहीं जा रही इट मीन्स ये जो चीज है P R जो है ये व्यास नहीं है एक जस्ट एक जीवा है मान लो पी आर एक जीवा है तो आपको दिता हुआ एंगल पी क्यू आर बराबर है 100 डिग्री आ जो सानू एंगल दिता हुआ है वो दिता हुआ है 100 डिग्री पता सब ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀ ਕਿਊ ਅਤੇ ਆਰ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਪੀ ਕਿਊ ਅਤੇ ਆਰ ਕੇਂਦਰ O वाले ਚੱਕਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ P Q R ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਨੇ P ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ Q ਵੀ ਔਰ R ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂਗਲ OPR ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ OPR ਸਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ OPR ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਗਲ OPR ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ PR ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਹੈ
मान लो पी आर एक जीवा है। किस दी जीवा है? चक्कर, इस चक्कर की जिसका केंद्र की है O। ਹੁਣ देखो जो एक चक्कर है इसका सेंटर A है और यह एक जीवा जा रही है पी आर, तो ए वाली जी आर्क होगी इसनों असीं कहते हैं मेजर आर्क, मतलब दीर्घ चाप, और ए वाली जी चाप है लघु चाप। आप कहते हैं कि सपोज आप मान लो इतने कोई पॉइंट एस ले लेते हैं, दीर्घ देखो ओ तो आ सेंटर इत्थे है, तो जी पी आर जीवा है, पी आर ये चक्कर को दो हिस्सों च वंडदी है। सेंटर इधर आ गया, अगे आ गया इस तो उपरला हिस्सा छोटा है और निचला हिस्सा वड्डा है, तो आ वाली चाप किहड़ी बन गई? दीर्घ चाप। तो आप कह सकते हैं कि मान लो एस एक पॉइंट है, एस एक बिंदु है जो किथे स्थित है? दीर्घ चाप ऊपर, जो कि दीर्घ चाप ऊपर स्थित है। ये असी आप एज्यूम कर लिया कि एस एक बिंदु है जो कि दीर्घ चाप ऊपर स्थित है। तो हुण असी इहनूं सोल्व करन लई कहने आ पी एस अते आर एस नूं मिला, पी एस अते आर एस नूं मिलाओ। ਹੁਣ देखो ये क्वेश्चन की बन गया, आप सोल्यूशन च की किया, अपने कोलों एक पॉइंट एस जूम किया और P ਨੂੰ S ਨਾਲ मिलाता, R ਨੂੰ भी S ਨਾਲ मिलाता। और तुसी जेकर ध्यान नाल देखोगे तो PQRS ये की बन गया? एक चक्री चतुर्भुज बन गया। और चक्री चतुर्भुज दे विच की हुंदा है? ਜਿਹੜੇ सन्मुख कोण ਹੁੰਦੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 180 डिग्री ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ देयरफॉर इस करके PQRS एक जो आप लिखांगे हुण नाउ PQRS की है? एक चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है। देयरफॉर इस करके एंगल PQR प्लस एंगल PSR, एंगल PQR प्लस एंगल PSR दोनों का जोड़ किहदे बराबर हुंदा है? 180 डिग्री के बराबर हुंदा है। असी रूल किया ना, देखो चक्री चतुर्भुज के सन्मुख कोणां का जोड़ किस दे बराबर हुंदा है? 180 के बराबर हुंदा है। सो असी रीजन इत्थे देवांगे, की लिखांगे? चक्री चतुर्भुज के सन्मुख कोणां का जोड़ बराबर हुंदा है किस दे? 180 डिग्री दे। तो हुण एंगल PQR कितना है? 100 डिग्री। जेकर एंगल PQR हैगा 100 डिग्री अपन दिता होया, प्लस एंगल PSR ਆਪਾਂ पता कर सकते हैं, PSR से पता कर सकते, दोनों का जोड़ हैगा 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल PSR नो मैं लिख सकता 180, 100 उधर जाके की हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ये आ गया जी 80 डिग्री के बराबर। तो आप लिख सकते हैं एंगल PSR किस दे बराबर है? 80 डिग्री के बराबर है। आई थिंक इत्थे तक तुहानू ये क्वेश्चन क्लीयर हो गया होना है। तो इस तो नैक्सट हुण जदों सानू PSR 80 डिग्री पता लग गया तो ध्यान नाल देखिए PR एक चाप है जो केंद्र ते एंगल POR बना रही है, ते किसी होर बिंदु ते बाकी जिहड़ा रह गया चक्कर उस बिंदु किसी होर बिंदु S ते एंगल PSR बना रही है। तो जिहड़ा केंद्र वाला कोण होएगा वो बाहरले कोण तो की हुंदा है? डबल हुंदा है। बाहरले कोण तो डबल हुंदा है। जेकर PR ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ 80 बनाया गया है तो इसे PR ਵੱਲੋਂ सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ बनाया जाएगा? इस तो डबल, तो 80 का डबल 160 डिग्री बनाया जाएगा। सो ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ वो देखते हैं। हाले तक ਅਸੀਂ ਕੀ फाइंड ਕੀਤਾ? एंगल PSR बराबर है 80 डिग्री। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सब कुछ रब कर देंगे ਤੇ एंगल PSR ਨੂੰ 80 डिग्री के बराबर लिख लेते हैं। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ एंगल PSR बराबर है 80 डिग्री, ये ਅਸੀਂ फाइंड किया है। तो
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, therefore एंगल POR, एंगल POR ये की होएगा 2 ट्वाइस होएगा किस तो, एंगल PSR तो। एंगल PSR तो दुगना होएगा POR। कारण की है, कारण आप पहला ये कई बार कर चुके हाँ की है कि एक चाप द्वारा बेटा कारण लिखना बहुत जरूरी है, हर क्वेश्चन च लिखना है। केंद्र ते बनाया कोण चक्कर दे बाकी हिस्से ते बनाए कोण नालों दुगना हुंदा है। सो बाकी हिस्से ते कोण बनया सीगा 80 डिग्री, तो केंद्र ते इस तो दुगना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 गुणा PSR 80 सीगा, तो ये बन जाएगा 2 गुणा 80, तो ये बन गया 160 डिग्री। तो मैं एंगल POR नू लिख सकता 160 डिग्री। ये असी नवी चीज लभी है। हुण इस ट्रायंगल दे विच, ट्रायंगल POR दे विच, त्रिभुज POR दे विच जेकर आप लिखिए, देखिए ध्यान नाल, त्रिभुज POR विच O केंद्र है, O तो लेके P तक का जो डिस्टेंस है, आ जी लंबाई है, और O तो लेके R तक की लंबाई है, ये दोनों बराबर होंगे। कारण की है कि A भी अर्धव्यास है और A भी अर्धव्यास है। तो हम त्रिभुज POR विच OP बराबर है OR, OP बराबर है OR की है अर्धव्यास, ये दोनों की ने अर्धव्यास है। जेकर OP बराबर है OR, तो OP दे ओपोजिट वाला जेड़ा एंगल है, OP दे ओपोजिट एंगल केड़ा है, इस जेड़ी ए वाली भुजा दे ओपोजिट एंगल ए वाला, और OR दे ओपोजिट एंगल केड़ा है ए वाला। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। जेकर देखो असी किता है ना कि जेकर किसी त्रिभुज दियां दो भुजावां बराबर हैं, तो उन्हां दे सन्मुख कोण भी आपस विच की हुंदे ने, बराबर होंदे हैं। तो आ भुजा ते आ भुजा बराबर है, तो इसका ओपोजिट कोण ए वाला ते इसका ओपोजिट कोण ए वाला, ये आपस दे विच बराबर होंगे। तो असी लिख सकते हैं एंगल OPR, एंगल OPR बराबर है किस दे, ORP दे, ORP दे। तो रीजन की है समान भुजावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ त्रिभुज ਦੀਆਂ समान भुजावां ਦੇ सन्मुख कोण बराबर ਹੁੰਦੇ ਹਨ। these are equal। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ एंगल्स इक्वल ने, ਤਾਂ ਹੁਣ मैं लिख सकदा ट्रायंगल POR ਵਿੱਚ जेकर मैं तीनों कोणों की गल करा, आ असी लभी है 80 का डबल, आ 160 डिग्री है, आ वाला कोण ते आ वाला कोण बराबर है, तो मैं तीनों कोणों का जोड़ लिख सकता 180 के बराबर। ट्रायंगल POR विच एंगल OPR, एंगल OPR प्लस ORP, ORP प्लस POR प्लस एंगल POR, तीनों का जोड़ की है 180 डिग्री। और इतने असी रीजन देवांगे जरूर, स्पेस घट है मैं नहीं लिख रहा। रीजन की है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ किहदे बराबर होंदा है, 180 के बराबर होंदा है। तो हुण मैं इन्हां तिन्नां दी थां ते वैल्यूज पुट करूंगा। OPR ते ORP बराबर है, तो OPR की थां ते मैं लिखूंगा OPR, पर ORP की थां ते क्योंकि OPR दे ही बराबर है, तो मैं इससे भी लिख सकता OPR, एंगल OPR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल POR असी फाइंड किया, देखो 160 डिग्री, 160 डिग्री, ये तीनों का जोड़ बराबर है 180 डिग्री। तो एंगल OPR ते एंगल OPR दो बारी आ गया, तो आप लिखांगे दो बारी एंगल OPR, ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू किहदे बराबर होएगा, इन्हां दोनों का जोड़ असी ये लगा लिया, 160 असी उधर ले गए, 180 ये प्लस का सीगा, 160 उधर जाके माइनस का हो गया,
180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। दो एंगल OPR बराबर है 180 चो 160 घटावांगे तो कितना आएगा 20 डिग्री। तो दो एंगल OPR बराबर है 20 डिग्री और जेकर मैं एंगल OPR फाइंड करना होवे तो वो है 20 नाल 2 ਨੂੰ मैं भाग कर दूंगा क्योंकि 2 इधर गुणा सी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 एकम 2 10 ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 डिग्री। तो ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि एंगल OPR कितना आया है 10 डिग्री। साडू पूछा कि या सी एंगल OPR पता करो तो वो कितना आया साडे कोले 10 डिग्री ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 10.5। क्वेश्चन नंबर 6 बड़े इजी क्वेश्चंस हैं अगर ध्यान नाल कीते जान स्टेप बाय स्टेप अगर इसको ਅਸੀਂ ध्यान नाल करिए ਤਾਂ ਇਹ 100% ਸਕੋਰਿੰਗ क्वेश्चंस हैं। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 6 ਬਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ABCD ਇੱਕ ਚੱਕਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਰਣ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ E ਉੱਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ABCD ਇੱਕ चक्री चतुर्भुज है जिस दे विकर्ण बिंदु E ते कटदे हन। उस तो बाद की दिता होया है जेकर एंगल DBC बराबर है 70 डिग्री, जेकर एंगल DBC बराबर है 70 डिग्री ਅਤੇ एंगल BAC बराबर है 30 डिग्री ਅਤੇ एंगल BAC बराबर है 30 डिग्री ਤਾਂ एंगल BCD पता करो। ਤਾਂ एंगल BCD पता करो। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ जेकर AB बराबर है BC, जेकर AB बराबर है BC ਤਾਂ एंगल ECD पता करो। ਤਾਂ एंगल ECD पता करो। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਫਿਗਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ABCD ਇੱਕ ਚੱਕਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ एक चक्कर बनाऊंगा, उस चक्कर दे विच एक चक्री चतुर्भुज बना दूंगा लाइक इस तरह। तो इसमें मैं लिखूंगा ABCD एक चक्री चतुर्भुज। आई थिंक बड़ा सिंपल काम किया हाल तक। जिस दे विकर्ण बिंदु E ते कटदे हन। हुण इस चक्री चतुर्भुज दे विकर्ण एक विकर्ण हैगा AC और एक विकर्ण हैगा BD। ये किथे कट रहे हैं बिंदु E ते कटदे हन। जेकर एंगल DBC बराबर है 70 डिग्री, DBC ध्यान नाल देखो DBC ए वाला एंगल सानू दिता होया है 70 डिग्री अते एंगल BAC ए वाला सानू एंगल दिता होया है 30 डिग्री 30 डिग्री दे बराबर दिता होया है। तो एंगल BCD आ वाला एंगल पता करना है। एंगल BCD पहली चीज तो आपां यह पता करनी है बड़ा एंगल। अच्छा जेकर AB बराबर है BC हुण आ वाली साइड इस दे बराबर दी हुई है तो एंगल ECD दूसरी चीज की पता करनी है एंगल ECD मतलब आ वाला एंगल भी असी पता करना है। तो असी दो चीज़ां पता करनियां ने किहड़ियां मैं निशान लगाते एंगल BCD और एंगल ECD। हुण इसनूं असी किवें करांगे इस क्वेश्चन नूं देखो आपां नूं जो दिता होया है DC चाप राही DC एक चाप है जो एंगल DBC बना रही है ते DAC भी बना रही है। तो आपने किया होया कि जिवें एक चाप एक एंगल बाहर एक एंगल इस साइड ते चक्कर इस चक्कर खंड दे विच एंगल थीटा बना रही है ते दूजा एंगल भी किहदे बराबर ही होएगा थीटा दे बराबर ही होएगा।
जेकर DBC 70 है तो DAC भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि चाप DC द्वारा बनाए कोण किहड़े किहड़े DBC ਅਤੇ DAC। DBC एंगल DBC बराबर किहदे होएगा एंगल DAC ਦੇ। DBC ਤੇ DAC ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਕਰੀ ਖੰਡ ਦੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਕਰੀ ਖੰਡ ਦੇ ਕੋਣ AB ਚਾਪ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਕਰੀ ਖੰਡ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਣ ਬਣਾਏ। ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਚੱਕਰੀ ਖੰਡ ਦੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। पहली गल तो ये चीज होगी। तो DBC कितना है 70 डिग्री इस थां ते मैं भरता 70 डिग्री तो DAC कितना आ गया कितने बराबर आ गया 70 डिग्री। तो मैं हुण लिख सकदा DAC नूं की लिख सकदा 70 डिग्री। DAC कैन बी रिटन एज 70 डिग्री। एक चीज क्लियर होगी। हुण दूसरी चीज उन्हें की फाइंड करनी क्या सब तो पहला काम एंगल BCD। जेकर ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ A ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 70 + 30 ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ 70 ਹੈ ਆਹ 30 ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 70 + 30 ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ 100। जेकर आह 100 है तो आह वाला एंगल कितना हो गया 180 चो मैं वो वाला एंगल घटा दूंगा 100 वाला तो एंगल ए वाला आ जाएगा कितना BCD कितना आ जाएगा 80 डिग्री के बराबर आ जाएगा। साडी पहली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। तो इस दे विच एंगल DAB therefore angle DAB plus BCD ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 डिग्री ਦੇ। ਕਿਉਂ 180 डिग्री ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੱਕਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਰੀਜ਼ਨ ਚੱਕਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ बराबर होता है 180 डिग्री। बट DAB की है पर DAB किधर बराबर है DAB एक DAC + CAD आ एंगल प्लस आ एंगल के बराबर है। तो मैं DAB लिख सकता एंगल DAC आ वाला एंगल प्लस आ वाला एंगल प्लस CAD एंगल CAD। DAC 70 डिग्री है और CAD 30 डिग्री है। तो एंगल DAB कितना आ गया 70 + 30 बराबर है 100 डिग्री। DAB का मुल असीं कितना कटिया 100 डिग्री। इस 100 डिग्री नूं मैं इत्थे वैल्यू पुट कर दूं तो मैं लिख सकदा इहनूं आपां इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 या समीकरण 1 च भरन ते DAB की थां ते मैं की भरूंगा 100 डिग्री। देखो DAB कितना निकले 70 + 30 100 के बराबर। तो DAB की थां में भरूंगा 100 डिग्री प्लस एंगल BCD बराबर है 180 डिग्री। आ वाला एंगल प्लस आ वाला एंगल 180 के बराबर है। तो एंगल BCD किस दे बराबर है 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 - 100 कितना आ गया 80 डिग्री के बराबर। साडे पहली प्रॉब्लम हल हो गई। उन्हें क्या सी एंगल BCD पता करो तो ਅਸੀਂ लिखता एंगल BCD बराबर है 80 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये है 80 डिग्री। अगली चीज एक पॉइंट क्लियर हो गया। नैक्सट उन्हें की पूछे ਅਸੀਂ ਹੁਣ जो कंक्लूजन कटे ਹੁਣ तक वो की कटे उसको ਅਸੀਂ ऊपर लिख लेने। ਅਸੀਂ फाइंड किया है एंगल BCD बराबर है 80 डिग्री। BCD बराबर है 80 डिग्री। ਅਸੀਂ ये चीज फाइंड की है। हुण इस ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज करांगे किथे आ BCD पूरा एंगल है। आ वाला एंगल कितना है
ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਂਗਲ ਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਘਟਾ ਦਾਂ, ਦਿਸ ਵਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਂਗਲ ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। उन्होंने क्या की है, जेकर AB बराबर है BC, AB ते BC बराबर है, जेड़ी रेखा AB है ते BC बराबर है, ते जेकर मैं ट्रायंगल ABC लेना, त्रिभुज ABC विच आपां नूं की दिता होया है, AB बराबर है BC, ये आपां नूं दिता होया। तां जेड़ा AB दे ओपोजिट कोण है, AB आ भुजा है, ਇਹਦੇ ओपोजिट कोण सन्मुख कोण A वाला, और BC A भुजा है, इसके ओपोजिट कोण किहड़ा है A वाला, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ 30 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 30 ਡਿਗਰੀ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ओपोजिट ਕੋਣ A ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦੇ ओपोजिट ਕੋਣ A ਵਾਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ओपोजिट 30 डिग्री है, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ओपोजिट A ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 30 डिग्री। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 30 डिग्री। तो आप लिखते हैं AB बराबर है BC, देयरफॉर इस करके एंगल BAC इज इक्वल टू BCA, BAC इज इक्वल टू BCA। क्यों? त्रिभुज विच रीजन की है, समान भुजावां दे जिहड़े ओपोजिट कोण हुंदे हैं, सन्मुख कोण बराबर हुंदे ਹਨ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ BAC ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 30 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ BCA ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 30 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ देयरफॉर ਐਂਗਲ BCA ਬਰਾਬਰ ਹੈ 30 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਹੈ BCD, पूरा एंगल पता है BCD। इस पूरे एंगल चों मैं आ वाला एंगल घटा दवा, जिवें लाइक तुसीं इत्थे मैं तुहानूं एक होर फिगर बना के दिखा देना, इस तरह पता है आपां नूं। हुण आ वाला पूरा एंगल पता है आपां नूं 80 डिग्री, आ वाला आपां नूं 30 पता है, पूरा आपां नूं पता है किन्ना 80। तां जे मैं आ फाइंड करना होवे तां पूरे दे विचों 80 चों मैं आ वाला 30 घटा दूंगा, तां ये वाला एंगल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। इत्थे भी मैं यही करन लग गया। तो एंगल ACD उन्हें पता करने की है ECD, ACD या ECD गल इको ही है ना, A तो शुरू कर लो C ते ले जाओ ते D वाल आ जाओ, भावें A दे रस्ते च E तो शुरू कर लो C ते ले जाओ ते D वाल आ जाओ, इको ही गल है। तो आप A तो ही पहला स्टार्ट करते हैं। एंगल ACD, एंगल ACD ये किहदे बराबर है, जेकर मैं BCD दे विचों एंगल BCD इस पूरे एंगल चों आ वाला एंगल माइनस कर दवां, माइनस BCA, तां किहदे बराबर आ जाएगा एंगल ACD दे विचों। BCD कितना 80 डिग्री, BCA कितना 30 डिग्री, तां एंगल ACD कितना आ गया 80 माइनस 30 50 डिग्री। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ACD ਬਰਾਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ 50 ਡਿਗਰੀ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀ ECD, ਤਾਂ ACD ਜਾਂ ECD ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ E ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਣਾ C ਤੇ ਫਿਰ D ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ ACD ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗਲ ECD ਦੇ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 50 डिग्री। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਐਂਗਲ 70 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ ਐਂਗਲ 30 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆ 70 ਸੀ ਤੇ ਆ 30 ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਐਂਗਲ 70 ਸੀ, DC ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ 70 डिग्री ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ DAC ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ 70 ਹੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਆ 70 ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ 70 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ A ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ C ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 180 ਦੇ। ਐਂਗਲ A ਕਿੰਨੇ 70 + 30 100, ਤਾਂ ਆ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਪਲੱਸ 100 180 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 180 ਚੋਂ ਮੈਂ 100 ਘਟਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ 80 डिग्री ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ 80 डिग्री ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਦਿਸ ਵਨ।
ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ 80 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ 'ਚ AB ਤੇ BC ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ AB ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਤੇ BC ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। BC ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ 30 ਹੈ ਤਾਂ AB ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਵੀ 30 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 30 ਹੈ, ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਇਹ 80 ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆ 30 ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 50 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ACD ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 50 ਡਿਗਰੀ। ਔਰ ACD ਤੇ ECD ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਂਗਲ ECD ਵੀ 50 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।